गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम करने जा रहे हैं एमएसटी सीईटी के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड what product are obtained when beryllium oxide is treated with HCl and when beryllium oxide is treated with NaOH। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है BeCl2 and BeOH twice, ऑप्शन बी है BeCl2 and Na2BeO4, ऑप्शन सी है BeOH twice and BeCl2 and option D is BeCl2 and Na2BeO2। ठीक है, सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि which product will form when beryllium oxide is treated with HCl। आइए करते हैं रिएक्शन। बेरिलियम ऑक्साइड का सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन का -2 है, देयरफॉर BeO is the molecular formula of beryllium oxide when treated with HCl produces BeCl2 and water will be the byproduct। So this is the first reaction when beryllium oxide is treated with HCl produces BeCl2 beryllium chloride। तो ये तो पक्का है कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। Now next reaction when BeO is treated with NaOH produces, यहां से सोडियम twice NaOH Na2 BeO2, this is sodium बेरिलेट, याद रखना दोनों भी रिएक्शन। ठीक है, तो जब बेरिलियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड बनेगा और whenever बेरियम ऑक्साइड when treated with NaOH produces sodium बेरिलेट। मेरे साथ नोट्स बना लो। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Second question is identify basic oxides from following। Option A is SO3, option B is NO, option C is Al2O3 and option D is CaO। हमें आइडेंटिफाई करना है which compound is known as a basic oxide। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स का डेफिनेशन क्या होता है। बेसिक ऑक्साइड is the compound when treated with H2O produces base। याद रखना, ऐसा कंपाउंड जब वाटर के साथ ट्रीट करेगा और प्रोड्यूस करेगा बेस। ठीक है, और ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड के साथ ट्रीट करेगा एंड प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट, सच कंपाउंड इज known to be as a basic oxide। so इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड when treated with H2O produces calcium hydroxide plus water। ठीक है, तो ये था हमारा। सो कैल्शियम ऑक्साइड is known as a basic oxide।
because it produces base when react with H2O. तो ये था definition, the compound which produces base on the treatment with H2O and compound which produces salt on the treatment with acid is known as a basic oxide, and calcium oxide is known to be basic oxide. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Beryllium shows diagonal relationship with option A sodium, option B magnesium, option C aluminium and option D silicon. ठीक है. सो इनमें से कौन सा एलिमेंट बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे. आइए देख लेते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट. ग्रुप 2 के एलिमेंट है ग्रुप 13 के एलिमेंट है. ठीक है. तो यहां से देख लो, ये वाला जो कंपाउंड है ये डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन करेगा बेरिलियम के साथ. मतलब एल्यूमिनियम इज द कंपाउंड which makes diagonal relationship with the beryllium. So option C is correct answer. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. मेरे साथ सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे. नोट्स विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. ठीक है. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4. Which from the following compound obtained by phosphorus, which from the following compound obtained by phosphorus in synthesis of sodium bicarbonate by Solvay process. Option A is ammonium carbonate. Option B is sodium bicarbonate, and option C is calcium chloride, and option D is ammonium chloride. ठीक है. सो आइए देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन इज दैट विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, नीचे दिए हुए किस कंपाउंड से, ठीक है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा बाय फॉस्फोरस इन सिंथेसिस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. ओके. क्लियर है. Let me check the question. I think question is incorrect. Okay. यहां पे आइए.
थोड़ा सा करेक्शन होगा, ठीक है। Which of the following compound is obtained in synthesis of sodium bicarbonate by Solvay process? Solvay process एक ऐसा process है, this is an industrial method of production of sodium bicarbonate when ammonium chloride is treated with lime, ठीक है। आइए देख लेते हैं, मतलब सॉल्वे प्रोसेस होता क्या है सबसे पहले समझ लो। इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिस मेथड से हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट मेथड इज नोन टू बी एज ए सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। इसमें एक सेकंड स्टेप है, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ स्लेक लाइम। ये होता है हमारा स्लेक लाइम, याद रखना, बच्चों को पता ही नहीं, स्लेक लाइम, ठीक है। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ स्लेक लाइम, ठीक है, प्रोड्यूसेस CaCl2 प्लस H2O, क्लियर है, CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। सो ये वाला जो प्रोसेस है, इट इज द सेकंड स्टेप of manufacturing of sodium bicarbonate in Solvay process, and in this process calcium chloride will be the byproduct। अगर आपको सॉल्वे प्रोसेस पूरा देखना है तो मेरे आने वाले वीडियो में देख लो, आप सॉल्वे प्रोसेस का पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, और इसमें स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, और ये स्टेप सेकंड होगा, इसमें जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। मतलब जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ये वाला बाय प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following element हमें एलिमेंट फाइंड करना है इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट has largest ionic radius? Option A is rubidium, option B is potassium, option C is a sodium, and option D is a lithium, ठीक है। हमें फाइंड करना है which of the element from the following in +1 oxidation state has the largest ionic radius। याद रखना, ग्रुप वन के एलिमेंट और ग्रुप 2 के एलिमेंट हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ठीक है, ये सारे के सारे ग्रुप 1 एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इनमें से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो हमें देखना होगा ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 के एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, शेल नंबर इंक्रीजेस और एटॉमिक साइज क्या होगा, इसका बड़ा होगा, दैट इज आयोनिक साइज भी बड़ा होगा। सो अगर मैं रुबिडियम ले लूं, सो एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, रुबिडियम will be larger in size, therefore Rb+1 will be greater in ionic radius as compared to remaining elements. So रुबिडियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। और ये था पार्ट 1
इस चैप्टर का पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। आप सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो, डेली 3-4 वीडियो आ रहे हैं। सीटी के एग्जाम करीब है, 13 तारीख से स्टार्ट है, तो आपको ये सब कुछ हेल्पफुल होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करो सो दैट मैं आप तक पहुंच जाऊं। ओके, टिल देन बाय बाय।